नहीं सकता उसे फिर. The devil cannot steal it. Okay? आज मैं आपको I'll teach you two dimensions of the Holy Spirit which is very important for every believer to understand. मैं पवित्र आत्मा के दो आयाम आपको सिखाऊंगा जो हर विश्वासी को सीखना बहुत जरूरी है. Okay? Anointing, बहुत कम विश्वासी लोग anointing को समझते हैं. Very few believers understand the anointing. Anointing केवल एक प्रचारक के लिए नहीं है, anointing हर एक खुदा के बेटे और बेटी के लिए है. Anointing is not just for preachers, but the anointing is for every son and daughter of God. Yes, खुदावन क्या करता है, अपने कुछ लोगों को अलग करता है, अपने दासों को, और उनको एक स्पेशल तरीके से अभिषेक करता है कि वो एक तरीके से उसकी देह पे उन्नति ला सके. Yes, God separates some of his servants in a special manner that they can bring an edification in his body. But anointing is for everyone. लेकिन वो अभिषेक हर एक के लिए है. Okay? और शैतान anointing से नफरत करता है. And the devil hates the anointing. क्योंकि anointing उसके जुए को तोड़ डालता है. Because the anointing breaks his yoke. Okay? So मैं आज आपको दो तरह के anointing के बारे में सिखाऊंगा. अनॉइंटिंग जो आपके अंदर कार्य करता है और अनॉइंटिंग जो आपके ऊपर कार्य करता है. So I'll tell you about two kinds of anointings. First, the anointing that works within you, and second, the anointing that works upon you. और दोनों होना बहुत जरूरी है. And it is important to have both. Okay? क्योंकि परमेश्वर की देह में बहुत कंफ्यूजन है. Because there's a lot of confusion in the body. कई लोग बोलते हैं जब मैंने उद्धार पाया तो मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Some people say when I received salvation, I received the Holy Spirit, now I don't need anything else. तो आज हम वचन से सीखेंगे, ठीक है? So today we will learn from the word. सीखना चाहते हो? You want to learn? हाँ. धन्य है वे जो वचन का आदर करते हैं. Blessed are those who honor the word of God. Okay? So सबसे पहले हम चलते हैं. इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि anointing is the presence and power of God working through a human vessel. अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य है जो एक मनुष्य रूपी बर्तन के द्वारा काम करती है. अभिषेक बिजली की तरह है. Anointing is like electricity. अभी यहाँ पे अभिषेक है पूरी जगह. There is anointing in this place right now. बिजली की तरह. Like electricity. हाँ. मगर बिजली बिना तार के आपके घर में नहीं बह सकती. But electricity cannot come into your house without wires. परमेश्वर की सामर्थ सब जगह है इस समय. The power of God is everywhere. He is omnipresent. He is present everywhere. वो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है. But he puts his power in human vessels. लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को मनुष्य रूपी बर्तन में डालता है. So that they can become deliverers in their generation. ताकि वो अपनी पीढ़ी में छुटकारा देने वाले बन सकें. May each one of you be a deliverer in Jesus' name. आप में से हर कोई छुटकारा देने वाला हो यीशु के नाम में. एक काफी नहीं है. One is not enough. लाखों छुड़ाने वालों को खड़ा होना पड़ेगा इस देश में. We need lakhs of deliverers in this nation. हालेलुया. और ये इंसान के बारे में नहीं है. And It's not that man. It's the anointing working through that man. ये एक मनुष्य के बारे में नहीं, लेकिन उस अभिषेक के बारे में है जो उस मनुष्य के द्वारा काम कर रहा है. हालेलुया. मगर जैसे आप खुदा के साथ बढ़ते हो, But as you grow with the Lord, बहुत जरूरी है. अब लोग क्या करते हैं, लोग घर जब बनाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई एंकर की तार लगाना या हेवल्स की लगाना, अच्छी तार लगाना, कोई सस्ती वाली मत लगाना. when people build their house, they say what brand wires to buy for the electricity. क्योंकि सस्ती होगी तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. If it's a cheap वो wire, it will तार short circuit. उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी पावर को झेलने की. That wire doesn't have the capacity to handle such voltage of power. अब hear this. अगर आपका अंदर का अभिषेक कम है जो आपके ऊपर अभिषेक है तो If the anointing within you is lesser than the anointing upon you. क्या होता है, कोई व्यक्ति है उसने प्रार्थना करी, कैंसर हुए, अब वो फूल गया. So someone prayed and somebody's cancer got healed. Now this man is all puffed up. कोई व्यक्ति है उसकी बहुत मिनिस्ट्री है, चंगाई कर सकता है, मगर फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता.
Now a man who has a healing ministry can heal people and now he doesn't consider anybody घमंड से anything. भर गया. Is filled with pride. क्या हुआ? What happened? क्योंकि अभिषेक जो अंदर है वो डेवलप नहीं हुआ, अभिषेक जो ऊपर है केवल उससे कार्य कर रहा है. Because the anointing within has not developed yet, the anointing upon is working. इसीलिए आपने सुना है कितने परमेश्वर के ऐसे दास हैं, महान व्हील चेयर से लोगों को उठा रहे हैं मगर छुप के पाप में जीवन जी रहे हैं. So you've heard of many such people who had great anointing to lift people out of wheelchairs but lived a sinful life behind the curtains. क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक नहीं डेवलप किया. Because the anointing within has not been developed yet. दोनों बहुत जरूरी हैं. Both are ठीक very है, important. आज मैं आपको ये दोनों सिखाऊंगा कि आप सीखो इस बात को कि अभिषेक जो आपके ऊपर है वो दरवाजों को खोलेगा, मगर अभिषेक जो अंदर है वो खुले दरवाजे को खुला रखेगा. The anointing upon you will open the doors, but the anointing within will keep those doors open. कि आप शूटिंग स्टार ना हो. शूटिंग स्टार समझते हो? That you won't be a shooting star. तारा जो गिरता है, ऐसी सेवकाई नहीं करनी है, हमें आखिरी सांस तक करनी है. We should not minister like this. Our ministry should be till our last breath. ओके, सो चलिए अब जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान धरकर सुनना, वो वचन से है. ठीक है? Hear carefully, whatever I'm teaching is from the word. John 14:16 to 17. यूहन्ना 14:16-17. John 14:16 to 17. और यीशु मसीह कह रहा है, I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. यीशु कह रहे हैं मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. सबसे पहले I want you to focus, इस बात में मैं चाहता हूं आपका ध्यान ले जाना कि वो कब रहेगा तुम्हारे साथ? सर्वदा रहेगा. कब तक रहेगा? सर्वदा रहेगा. The first thing you have to understand, he will be with you forever. तो कई लोग सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा छोड़ देगा आपको. नहीं, वो सर्वदा रहेगा. Because some people teach that the Holy Spirit will leave you. No, he will be with you forever. ओके, इस रिश्ते में he will never divorce you. In this relationship वो कभी भी आपको तलाक नहीं देगा. वो कहता है मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा. He says I will be with you forever. Amen. That he will abide with you forever. वो हमेशा आपके साथ The रहेगा. Spirit of truth, सत्य का आत्मा, whom the world cannot receive. जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता. ओके, सो ध्यान से इसको सुनो. Hear carefully. वर्ल्ड, अरे ओके, cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. World cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. Jesus said the world cannot receive the Holy Spirit. Okay, because it neither sees him nor knows him. क्योंकि ना तो वो उसको जानता है ना ही उसको देखता है. But you know him. लेकिन तुम उसको जानते हो. For he dwells with you क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है and will be in you. और वो तुम में होगा. अब ध्यान से सुनो. Hear carefully. जब चेलों को प्रभु ने भेजा, जाओ दुष्ट आत्मा निकालो, मुर्दों को जलाओ, चमत्कार करो, तो चेलों के साथ पवित्र आत्मा उनके साथ था, उनके अंदर नहीं था. कहां था? उनके साथ था. Jesus said the Holy Spirit is with you and shall be in you. When Jesus sent the disciples to cast out demons, to set the captives free, to resurrect the dead, the Holy Spirit was with them, but Jesus here says the Holy Spirit will be with you and in you. Okay, ठीक है. So चेले उस टाइम तक चेलों का नया जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा नया जन्म कैसे होता है? पवित्र आत्मा से. यूहन्ना 3:3, जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है. Till that moment, the disciples had not been born again yet, because our new birth comes from the Spirit. He was born from the Spirit of Spirit. Amen. अब जो दुनिया है, the world cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता. मगर अब यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से या संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया. सो यीशु मसीह किसके लिए दिया पिता ने? संसार के लिए. God so loved the world that he gave his son for the world. That means world can receive Jesus. इसका अर्थ है संसार यीशु को ग्रहण कर सकता है. ठीक है. संसार यानी जो लोग पाप में हैं, जो पापी हैं, sinners
cannot receive the Holy Spirit. Those who are in the world, who are not born again, those who are in sin cannot receive the Holy Spirit. मगर संसार जो दुनिया है वो यीशु को ग्रहण कर सकते हैं. But the world can receive Jesus. Okay, so hear this. Jesus is God's gift for the world. यीशु परमेश्वर का गिफ्ट है दुनिया के लिए. यीशु तोहफा है पिता का किसके लिए? दुनिया के लिए. मगर पवित्र आत्मा पिता का तोहफा है अपने बेटे और बेटियों के लिए. But the Holy Spirit is the gift for God's sons and daughters. ये क्लियर हो गई बात? Clear? ठीक है. यानी जब तक कोई परमेश्वर की संतान नहीं बनेगा वो पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण कर सकता. Unless one is a child of God, they cannot receive the Holy Spirit. लूका 11:13. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? बाइबल कह रही है आप क्या करते हो? जितने आप माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट देते हो अपनी हैसियत के हिसाब से. सही बात है? You give the best gift to your children according to your standards. जितना बेस्ट आप दे सकते हो The आप best- अपने बच्चों को दे रहे हो. The best तो education. यीशु मसीह कह रहा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हो तो पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देता है, और पिता जो अपने बच्चों को बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है. So Jesus is saying, when you being evil give your best to your children, the Father who is good also gives his best to his children, that is the Holy Spirit. So hear this. Holy Spirit is the Father's best gift to his children. पवित्र आत्मा पिता का बेस्ट गिफ्ट है अपने बच्चों के लिए. ओके अगर आप, कई लोग नहीं जानते इसको, तुच्छ समझते हैं. Many of you don't understand and you हमें लगता है despise it. गिफ्ट क्या, केवल घर दे दो, प्रभु एक बड़ी मिल. अगर पवित्र आत्मा पिता ने आपको दिया तो वो बेस्ट दिया है पिता ने अपना तोहफा आपको. Some people say, God give me a house, give me this, give me that, but they don't understand. If God has given you the Holy Spirit, this is the best that God has to give. ओके अब हुआ क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मर गया, पुनरुत्थानित हो गया, अब चेले डर के कमरे में छुपे हुए हैं. When Jesus was buried and then he resurrected, now the disciples are in a room, they are scared. अभी तक उनका नया जन्म नहीं हुआ है, Till now they were not born again. क्योंकि जब तक यीशु मसीह मर के जिंदा नहीं हो जाता तब तक नया जन्म नहीं हो सकता रहा मानव जाति. Until Jesus was resurrected from the dead, a new birth, सो born सबसे again could not पहले be. जब यीशु मसीह जीवित हो गया वो इन चेलों के पास गया, और देखो वो क्या कह रहा है यूहन्ना 20:21 से 22 में. सो जीसस सेड टू देम अगेन, पीस टू यू, एज द फादर हैज सेंट मी आई आल्सो सेंड यू. एंड व्हेन ही हैड सेड दिस he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. When Jesus was resurrected, he went to the disciples. उसने कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. यह कहकर उसने उन पे फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो. क्या किया यीशु मसीह ने? सबसे पहली चीज क्या दी चेलों को? What was the पवित्र first thing Jesus gave to the और disciples? पवित्र आत्मा देने से पहले क्या बोला? बोला जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो. He said, as the Father has sent me, so I send you. Receive the Holy और Spirit. उससे पहले क्या किया उसने उनके ऊपर फूका. ये दिखाता है वो परमेश्वर है जिसने आदन के वाटिका में आदम के नाक नथुनों में श्वास को फूका, और यीशु ने कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो. And he breathed on them. This shows the God who breathed into the nostrils of Adam in the Garden of Eden. He breathed and said, receive the Holy Spirit. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. जब यीशु ने चेलों को बोला पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तो क्या उन्होंने ग्रहण करा पवित्र आत्मा को? When Jesus said, receive the Holy Spirit, did the disciples receive the Holy Spirit? जी हाँ, Yes. करा. Yes, they received. उस समय उनका नया जन्म हो गया. क्या हो गया? नया जन्म हो गया. अब वो आत्मा से उन्होंने जन्म ले लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा था जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है वो कहां होगा? तुम्हारे अंदर होगा. तो अभी जब यीशु ने सांस को फूका तो पवित्र आत्मा कहां गया? चेलों के अंदर गया.
In that moment, the disciples were born again. Jesus said the Holy Spirit will be in you. When he breathed, the Holy Spirit was in the disciples now. पहला कुरिन्थियों 3:16, 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16 क्या लिखा है इसमें? That क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में, इंग्लिश बाइबल सेज इन यू, तुम्हारे अंदर वास करता है. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? यानी जब आपका नया जन्म होता है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा कहां जाता है आपके? So when you are born again, the Holy Spirit comes to live inside of you. तो आज मैं ये कंफ्यूजन खत्म कर देना चाहता हूं. क्या हमें पवित्र आत्मा मिला नहीं मिला? अगर नया जन्म पाया तो पवित्र आत्मा मिला है. So I want to end this confusion today. If you have been born again, you have received the Holy Spirit in you. मगर एक और एक्सपीरियंस है. But there is one more experience. ओके, यीशु ने अब चेलों को क्या कहा? प्रेरितों के कार्य 1:4-5 में, एंड बीइंग असेंबल्ड टुगेदर विद देम ही कमांडेड देम नॉट टू डिपार्ट फ्रॉम जेरूशलेम बट टू वेट फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फादर व्हिच ही सेड, यू हैव हर्ड फ्रॉम मी, फॉर जॉन ट्रूली बैप्टाइज्ड विद वाटर बट यू शैल बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट नॉट मेनी डेज फ्रॉम नाउ. प्रेरितों के काम 1:4, यीशु ने और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. ओके, पहला क्या कहा उसने? पवित्र आत्मा को ग्रहण करो. अब उन चेलों ने पवित्र आत्मा पाया? कम ऑन, टॉक टू मी. पाया? At first he had said receive the Holy Spirit. तो फिर अब यीशु क्यों बोल रहा है कि वेट करो जब तक तुम आत्मा का बपतिस्मा ना पालो? Then why is Jesus saying now wait till you receive the baptism of the Holy यानी Spirit? आत्मा का बपतिस्मा पाना एक अलग अनुभव है नया जन्म पाने से. That means the baptism of the Spirit is another experience than being born again. ठीक है? ओके, क्लियर हो गया? उन चेलों ने पवित्र आत्मा पाया मगर यीशु मसीह ने कहा तुम वेट करो, तुम्हें एक और चाहिए, तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए. Those disciples were born again, but Jesus said, "Wait, because you need the baptism of the Holy Spirit." क्यों? क्योंकि जब बपतिस्मा तुम पाओगे तो कुछ होगा. Because when you receive the baptism, something will happen. क्या होगा? Acts 1:8. What will happen? But you shall receive power. परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे. जब अंदर आएगा तब नहीं, Not जब when- ऊपर आएगा. Not when the Spirit comes inside, but when the Spirit comes upon you. जब आप देखो यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा. हाँ, कहाँ आएगा? अंदर नहीं, क्योंकि अंदर तो आ चुका है. He has already come to live inside, not inside now. So okay, I want to explain this so that you understand. Holy Spirit in me is for me. Holy Spirit upon me is for others. पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दूसरों के लिए है. Okay? आपने सुना कितने लोग कहते हैं, हाय हम तो बहुत कोशिश करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी यीशु मसीह में. कोशिश कर रहे हो ना आप अपने हिसाब से. Yeah, some people say we try so much, but Jesus doesn't hear us because they've been trying. सामर्थ को पालो. You receive the power. उसने कहा जब सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे. He said, when you receive the power, you will be my witnesses. जिनको सामर्थ मिल जाती है वो सामर्थी गवाह बन जाते हैं यीशु मसीह के. Those who receive His power, they become powerful witnesses of Jesus. ओके, अब इसको मैं जल्दी से एक चीज बताता हूँ सो तुम्हें समझ में आए. John 4:14, but whoever drinks of the water that I give him will never thirst. यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा. सोचो मैं आपको बोलूं, मैं एक गिलास में पानी डाल के मैं आपको दूं और मैं बोलूं ये गिलास पानी पी लो, आज के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी. Imagine I give you a glass of water and I say, if you drink this, you will never be thirsty ever again in life. यही यीशु कह रहा है. This is what वो Jesus कह रहा है जो is saying. पानी मैं तुम्हें दूंगा, He says, the water that I give you, अगर ये पानी पी लिया if you drank it, तो फिर कभी प्यासे नहीं होगी. you will never ever be क्यों? thirsty. क्योंकि कह रहा है ये पानी तुम्हारे अंदर जाके एक सोता बन जाएगा जो उमड़ता रहेगा. Because he says this water will go inside you and become a fountain within, springing within. सोचो आपने एक गिलास पानी पिया You drink you. और वो आपके अंदर जाके एक सोता बन गया. Imagine you drink a glass of water and आपको become a प्यास नहीं लगेगी fountain. कभी. You will never be thirsty. ये दर्शाता है नए जन्म को.
This shows the born again experience. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर जाता है, When Holy Spirit goes inside you, अब आपकी तलाश खत्म हो जाती है। अब नहीं आप ढूंढते, अब आप 50 जगह नहीं जाते, आपको पता लग जाता है जीवित परमेश्वर एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। now your search is over. You're not running here and there 50 places, because you know there is only one true living God. His name is Jesus. ओके, तो ये श्रोता कहाँ है? Where is this fountain? अंदर है, ठीक है। तो अब Within मेरे you. अंदर एक है, श्रोता चल रहा है, मगर अगर आप प्यासे हो, There's a fountain within me, but if you are thirsty, मैं आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, I cannot quench your thirst, क्योंकि वो श्रोता मेरे लिए है, because that fountain is for me. क्योंकि मेरे अंदर उमड़ रहा है। It's within me. इसीलिए springing आप up. अपना उद्धार किसी को आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते। So you cannot give your salvation to someone else. You cannot loan it to another person. समझे? फिर से बोलता हूं, आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते। You cannot lend your salvation to another person. अब आगे John 7:38-39, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या बहेंगी? नदियां। सोता मेरे लिए था, अब जो नदियां मुझसे बहेंगी उससे आपकी प्यास बुझ सकती है। The fountain was within me, but now the rivers that flow, that can quench your thirst. दो चीजें, एक Two आपके things. अंदर सोता बह रहा है जो आपके लिए है, अब आपसे नदियां बहने लग गई, नदियां पूरे शहर को पिला सकती हैं। One is the fountain within you, though there's only enough for you, but now there are rivers flowing out of you that can feed the entire city. लोग कहते थे जब हमने यहाँ पे कलीसिया बनाई, कोई दिल्ली में इतनी दूर नहीं आएगा, अरे जहां नदियां बहेंगी वहां पूरा शहर आएगा। When we built the church here, people said nobody will come this far, but there, where the river is flowing, everybody will come to it. ओके, नदियां आउट ऑफ यू, ये किसको दर्शाता है? बपतिस्मा को, This shows the पवित्र आत्मा baptism. को। यानी उद्धार में पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। So in salvation, the Holy Spirit comes inside of you. मैं आपको बैप्टिज्म जो शब्द है वो ग्रीक शब्द बैप्टिजो से है, यानी डुबोना। The word baptism is from the Greek word baptizo, which is to एक्चुअली द immerse. वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड जिसमें डाई, कितने यहाँ पे बहने जिन्होंने अपनी चुन्नी डाई करी है कभी? हाँ, तो आपने सफेद चुन्नी ली, लाल कलर के अंदर डाली, चुन्नी गई लाल कलर के अंदर, लाल कलर गया चुन्नी के अंदर, जब बाहर आया तो चुन्नी लाल हो गई। So when you give your clothes for dyeing and they take a white cloth, make it red. तो उद्धार में पवित्र आत्मा पाना ऐसा है, So receiving the Holy Spirit in salvation is like पानी मेरे अंदर गया, the water came inside of me. और बपतिस्मा ऐसा है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है और मैं स्विमिंग पूल के अंदर गया। And baptism is like there is a swimming pool and I jump into the swimming pool. जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर जाता है तो मैं उद्धार पाता हूं, जब मैं पवित्र आत्मा के अंदर कूद जाता हूं तो मैं बपतिस्मा आत्मा का पाता हूं। When I receive the salvation, the Spirit comes inside of me. When I receive the baptism, I jump in the Spirit. ओके, अगर सामर्थ में चलना है If you want to live in power, तो बपतिस्मा का, आत्मा का बपतिस्मा चाहिए आप, you need the baptism of the Spirit. वरना आप सोचोगे मैंने सब कुछ कर लिया, क्यों नहीं लोग मेरी सुनते? Otherwise, you will think, I have done everything. Why don't people hear me? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से किसी को परमेश्वर के पास नहीं ला सकते, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। सामर्थ से ला सकते हो। Because you can only do it by power. कितने माइक चेंज करेंगे भाई? ओके, मुझे लग रहा है कि कितनी ज्यादा भूख है आपको, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा जल्दी खत्म कर दूं। I'm thinking about the hunger you have. देख लो बहन जो फ्लो बोल रही है, बहुत गुस्से से देखेंगे लोग तुम्हें। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो अभिषेक, अब क्या होता है कई बारी कोई मीटिंग में आया और अभिषेक उसके ऊपर आ गया, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, लोग कैंसर से ठीक हो रहे हैं, चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, वो किससे फंक्शन कर रहा है? जो अभिषेक उसके ऊपर है। A person who is walking in signs, wonders, miracles is operating through the anointing that is upon them. अब एक बात आपको सच बताऊं,
एक व्यक्ति शैतान की तरह जीवन जी सकता है और व्हीलचेयर से लोगों को उठा सकता है, चिन्ह चमत्कार कर सकता है, मगर छुप के शैतान की तरह जीवन जी सकता है. Now I'll tell you, a man can live like the devil behind in hidden doors, but can make the sick get out of wheelchairs. क्योंकि वो अपने वरदानों से चल रहा है, क्योंकि ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है वो वरदानों को लेकर आता है. Because he's walking in his giftings. When the Holy Spirit comes upon, he brings those giftings along. जैसे आपने अगर बहुत अच्छा कोई सिंगर को देखा होगा, अगर वो प्रैक्टिस नहीं भी करते तब भी वो गा सकते हैं अच्छा. If you would have seen good singers, even if they don't practice, they can sing. इसीलिए चाबी है कि ऊपर जो अभिषेक है और अंदर जो अभिषेक है दोनों में बढ़ना है हमें. So the key is to grow in the anointing that is upon and the anointing that is within. जो अभिषेक अंदर है वो क्या करता है जानते हैं? The anointing inside, you know what it does? पहला यूहन्ना 2:27. 1 John 2:27. पहला यूहन्ना 2:27. But the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things. परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जिसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है. इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया में अब सीखने की जरूरत नहीं. उससे पहला जब एक स्क्रिप्चर पढ़ोगे तो वहां पे बात कर रहा है यूहन्ना प्रेरित कि गलत शिक्षक जो आ गए थे, गलत शिक्षक यानी झूठे भविष्यद्वक्ता जो कह रहे थे कि यीशु मसीह देह में आया ही नहीं, वो एक पवित्र आत्मा था, वो देह में नहीं आया. तो तब यूहन्ना को लिखना पड़ा कि जो अभिषेक आपके अंदर है ना वो गवाही देगा, नहीं ये शिक्षा सही है, ये जगह सही है. आपके अंदर जो अभिषेक है वो गवाही देगा. So there were false teachers back in the day who came to teach that Jesus never came in the flesh. That is why John is writing that there is an anointing within you that will tell you that this is the right message or not. जो अंदर से करेक्शन आएगा वो उस अभिषेक से आएगा जो आपके अंदर है. The correction that comes to you from within will come from the anointing that is inside of you. जो आत्मा आपको बोलेगा ऐसा मत कर. When the Spirit will tell you, don't do this. आप जानते हैं एक समय ऐसा है जब प्रभु ने मुझे बोला था, और आप कितने फेथ अरीना 1 में कितने लोग थे जब हमने घोषणा करी थी और मिरेकल मनी लोगों के अकाउंट में आया था. इफ यू आर हियर, How many people were there? आप देख लो इतने गवाह. Declared people had miracle money. सो ये बार बार होने लगा. मैं बैंगलोर गया पास्टर्स को सिखाने के लिए, तो वो यही कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे करेंगे. तो मैंने कहा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुपरनैचुरली प्रभु प्रोवाइड करना चाहता है. और मैंने प्रार्थना करी और वहाँ पे पास्टरों के अकाउंट में उसी समय पैसा है. और ये बार बार होने लगा. हर मीटिंग में जो मैं जाता मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के अकाउंट में पैसा. मगर जब मैं प्लेन में बैठ के वापस आ रहा था, अचानक मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने कहा अब तू बिल्कुल एज में खड़ा हो गया है, अब तू बाउंड्री में खड़ा है, इसको क्रॉस मत कर, मिनिस्ट्री को इसके बारे में मत बना. मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर. ये क्या है? अभिषेक आपके अंदर जो आपको गलत कदम रखने से रोकता है. In that time when I was going to different meetings, I was declaring and miracle money was coming into people's account. But then the Holy Spirit corrected me and said, now you're standing at the boundary. Now don't make the ministry about it. This is the anointing that is within you that corrects you. Okay? और ये इस मिनिस्ट्री का मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस मिनिस्ट्री का एक फाउंडेशन है. हमने जितनी भी जगह में जाता हूँ, This is the foundation of this ministry. Wherever I go, हम लोग हर जगह बोल देते हैं हमें कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए, हम पैसों के लिए सेवा नहीं कर रहे, हमारी बढ़ोतरी यीशु से आती है. we tell everyone, don't give us an offering. We are not serving God for money. Our increase comes from Jesus. जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपको सब बातें सिखाता है. और वो अभिषेक कैसे बढ़ता है? पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से. The anointing that is within you that grows when you spend time in the fellowship of Holy Spirit. इसीलिए आप देखोगे परमेश्वर की देह में कई ऐसे हैं जो अंधी आंखें खोल देंगे, व्हील चेयर से खड़ा कर देंगे, मगर जब बाइबल खोलेंगे तो इतना गलत अनुवाद उसका करेंगे. क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक डेवलप नहीं किया. This is why there are so So many. they cannot interpret the scriptures. They can move in gifts, but they cannot interpret the scriptures. There are so many who can open blind eyes, get people out of wheelchairs, but when they start to teach the word, they will teach all wrong because the anointing inside has not grown. Okay? So बहुत जरूरी है कि बाहर जो आप काम में आ रहे हो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि भीतर का अभिषेक आपके अंदर बढ़े. So it is so important that when you are operating on the outside, the anointing inside you should increase. मैं आपको बताता हूं कैसे
जब हम मोती नगर में थे केवल 200 लोग थे When we were in Moti Nagar, barely 200 people. और एक फॉरेनर कपल आए मिलने के लिए And a foreigner couple came to meet और us. चर्च बढ़ रहा था, उसमें केवल 200 लोग थे The church was growing just 200 people. और उन्होंने कहा कि हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, And they said, we want to sponsor you. तो हम आपको एक घर देंगे, एक गाड़ी देंगे, We'll give आपके you- बच्चों को अच्छी स्कूल में डालेंगे We'll give और you a आपको एक house. बहुत अच्छी सैलरी देंगे, We'll give you a house, a car, put your kids in a good school and give a very good salary to क्योंकि you. हम देख रहे हैं कि आपकी मिनिस्ट्री अच्छा कर रही है, Because we see your ministry is doing good. आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ। You join our organization. तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करके बताऊंगा। I said, I'll pray and tell you. जैसे ही मैं रात को लेटा, The moment I laid down at night, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और बोला, अगर तूने सेवकाई इनको दी तो ये पूरी सेवकाई पे कंट्रोल कर देंगे, ये मेरी इच्छा नहीं है। the moment I laid down, the Holy Spirit said, if you allow them, they will take control of the entire ministry and that is not my will. जो अभिषेक तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। The anointing that is within you will teach you all things. बहुत देखिए, हमारा हृदय, हम क्यों एक कलीसिया में हम चंगाई करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रभु वे बोझ डालता है जो लोग आज सताए गए हैं बीमारियों में, परमेश्वर का हृदय। मगर अगर एक व्यक्ति बाहर चमत्कार करे और खुद शैतान की तरह कमरे के पीछे रहे तो फिर उसे क्या लाभ हुआ, अंत में क्या सेवा थी वो? क्योंकि प्रभु तो वो देख रहा है जो आप कमरे के पीछे हो। Yes, we pray for people to be healed because that's God's burden, His desire to see His people healed. But what is the use if a man walks in healing outside to people but lives like the devil behind closed doors? So लक्ष्य केवल चिन्ह और चमत्कार करना नहीं है, लक्ष्य यीशु मसीह के समान स्वरूप में बढ़ना है। The aim is not just to walk in signs and wonders and miracles, but the aim is to grow like Jesus in everything, in stature. Amen. जब आप उसके साथ संगति कर, आप प्रभु को पूछते, प्रभु तुझे क्या पसंद है, मेरी सेवकाई में तुझे जो नहीं पसंद वो हटा दे। When you fellowship with Him, you ask Him, Lord, what do you like? Whatever you don't like in my ministry, take it away. मैं आपको उसकी उपस्थिति में कह रहा हूँ, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जिस दिन ये सेवकाई करप्ट हो रही हो, ये पूरा चर्च बंद कर देना। I've said this to God and I'm saying this in God's presence. The day this ministry is corrupted, shut this church. क्योंकि अंत में क्या लाभ अगर मैं प्रभु के पास जाऊं, अंत में उसके सामने खड़ा हूं, वो कहेगा तूने करप्टेड चर्च को, तू पास्टर था। What will be the fruit of standing before Jesus when He will say, you led a corrupted ministry? Hear this. सुनिए, आज कितने सारे लोग हैं पता है, उनको करप्ट किसने करा है? पुलपिट चाहते हो, ये लाइट चाहते हैं, लाइट आए। so many people have been corrupted today because they lust for the pulpit, they want the light. और मैंने इतने सालों में देखा है, जो पुलपिट चाहता है खुदा उसे कभी पुलपिट नहीं देता। And all these years I have always seen all those who lusted after the pulpit, God never gave it to और them. जो भागता है खुदा कहता है तू है, क्योंकि तुझे पुलपिट नहीं चाहिए इसलिए मैं तुझे दूंगा। And everyone who was running away from the pulpit, God said, you are the one, because you don't want it, I'll give it to you. Amen. जहां हो वहां पुलपिट बनाओ, जहां नौकरी करते हो वहां पुलपिट बनाओ, जो कॉलेज में हो वहां पुलपिट बनाओ। आपको लाइट और पुलपिट की जरूरत नहीं, अगर मन में यीशु का प्रेम है तो जहां जाओगे वहां उसकी गवाही दोगे। Wherever you are, make a pulpit there. If you are working, make a pulpit there. At church, when you are at work, wherever you go, make a pulpit there. You don't need lights and pulpit to preach about Him. Hear this. If the light that is shining upon you is greater than the light that is shining in you, the light shining upon you will destroy you. वो लाइट जो आपके बाहर से ऊपर चमक रही है, उससे अगर तेज है जो लाइट आपके अंदर चमक रही है, तो जो बाहर की लाइट है वो आपको नाश कर देगी। कितने प्रीचर्स हैं जो अभिषेक उनके ऊपर था उसने उनको नाश कर दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, तो उनके मन ने क्या बोला, अरे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है प्रभु के साथ। क्योंकि वो सब हो रहा था, भले ही अंदर वो गलत जीवन जी रहे थे, मगर अंदर से उन्हें कभी कन्विक्शन नहीं आया, क्योंकि वो अपनी मिनिस्ट्री की सक्सेस किससे देख रहे थे? जो काम हो रहे थे। So many preachers got destroyed because when they were ministering, mighty works were happening. So they assumed that my relationship with God is great because these things are happening, and slowly they drifted away and got destroyed. No. आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? मैं लंबा नहीं करूंगा आज, मेरी घड़ी अलग ही है, 7:15 दिखा रही है। एक परमेश्वर के दास हैं, जब उनकी मृत्यु हुई वो यीशु के सामने खड़े हुए। आप जानते हैं यीशु ने पहला सवाल उनसे नहीं पूछा, मेरे बेटे
बता तूने कितनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाई. A man of God, when he died and was standing before the Lord, the first question God asked him, Jesus asked him, was not, "My son, how great did you build the ministry?" कितनी बड़ी भीड़ तेरी सेवकाई में आती थी. How many crowds attended your ministry? कितनी बड़ी बिल्डिंग तूने बनाई. What big size buildings did you ये make? नहीं पूछा. Jesus आप did जानते हैं not क्या ask. पूछा? You know what he asked? प्रभु ने उनसे पूछा, The Lord asked him, क्या पृथ्वी में तुम मेरी तरह प्रेम करना सीखा? "Did you learn to love like me on the earth?" ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग है हमारी कि क्या यीशु की तरह हम प्रेम करना, दया दिखाना सीखेंगे इस पृथ्वी पे. This is our greatest training, that will we learn to love like Jesus on the earth? जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके लिए बातें बोलते हैं, क्या आप कभी घुटने टेक के उनको ब्लेस करते हो? क्योंकि पिता ये सब देखता है. Those who speak evil of you, those who are against you, do you come to your knees and bless them because the Father is looking? सो लक्ष्य केवल इस अभिषेक में तो बढ़ना है. क्यों बढ़ना है भाई? क्योंकि लोगों को छुटकारा देना है, इसलिए बढ़ना है. मगर उससे भी ज्यादा जो अभिषेक अंदर है उसमें बढ़ना है. यीशु की तरह उसके हृदय को समझना है. Yes, we have to grow in the anointing upon us because His people are to be delivered. But more than that, we have to grow in this anointing because we have to grow like Him, become like Him. ओके, एक टेबल है जो मैंने बनाई है, जो आप घर जाके पढ़ सकते हो कि क्या अंतर है. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, ऊपर है, उसका क्या फंक्शन है. I've made this table to show you the purpose of Holy Spirit in you and upon you. ओके, सो होली स्पिरिट आपके अंदर कब आता है? उद्धार के समय में, एट सैल्वेशन. The Holy Spirit comes inside of you at salvation. आपके ऊपर कब आता है? जब आपका बपतिस्मा होता है आत्मा से. At the baptism of the Spirit. जो अंदर आता है वो क्या कारण है? इनर ट्रांसफॉर्मेशन. आपको अंदर से बदलता है पवित्र आत्मा. The Holy Spirit comes inside of you to change you from within. और जो ऊपर आता है वो किस लिए? आपको सामर्थ्य से भरता है. And upon you to give you power on the outside. अंदर जो आता है वो फल बनाता है पवित्र आत्मा के. The Holy Spirit, when the Holy Spirit comes inside, creates the fruits of the Spirit. ऊपर जो है वो वरदान में फ्लो करता है पवित्र आत्मा When के. the Holy Spirit comes upon you, flows in the Spirit, flows in the gift of the अब Spirit. सामर्थ में बढ़ना भी बहुत जरूरी है. अगर केवल मेरे अंदर आत्मा के फल हैं मगर मैं किसी को छुटकारा ही ना दे पाऊं तो उसका भी कोई फायदा नहीं. Now it is so important to also grow in the power of God, because if I have the fruits of God but I cannot deliver someone, it's of no use. अब सुनो, इफेक्ट क्या है जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है? आपको मसीह की तरह बनाता है. The effect when the Holy Spirit comes inside of you, He makes you like Christ. जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है आपको मसीह का गवाह बनाता है. When the Holy Spirit comes upon you, the Holy Spirit makes you a witness of Christ. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वो आप उसके साथ क्या करते हो? परमेश्वर से संगति कर सकते हो. The Holy Spirit within you enables you to fellowship with God. मगर जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है आप दूसरों की सेवकाई कर सकते हो, आप मिनिस्ट्री में बढ़ सकते हो. But the Holy Spirit upon you enables you to minister to others. और हमें दोनों चाहिए. And we need both. हमें दोनों चाहिए. We need both. मैं आपको सच में प्रभु के सामने कह रहा हूं, मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु जिस दिन मेरा अफेक्शन मिनिस्ट्री हो गया, तू ना रहा तो ये मिनिस्ट्री ले लेना मुझसे, किसी और को दे देना. I'm telling you before God that the day I say the day this ministry becomes my affection, take it and give it to somebody else. Our first affection is Jesus. हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है. He is our first love. वो हमारा पहला प्रेम है. Amen. मैं क्यों ये बातें बता रहा हूं? क्योंकि कितने लोग हैं जो आज मसा के पीछे भाग रहे हैं मगर जो मसा अंदर है उसको डेवलप नहीं कर रहे. Because so many people are running after. क्योंकि हर किसी को चाहिए सामर्थ आ जाएगी तो मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी. हाँ ठीक है, सामर्थ आएगी आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी, मगर क्या सच में वो मसा जो आपके अंदर जो आपको मसीह की तरह बनाता है, क्या उस मसा का पीछा कर रहे हो? वो मसा केवल पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से बढ़ता है. Everybody's running after power on the outside so the ministry can grow, but are they desiring to grow in the anointing within? Because that anointing will make you like Christ.
मुझे आज भी याद है सबसे पहली बार जब मैंने परमेश्वर की आवाज क्लियर सुनी, 4 बजे अपने कमरे में मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु गिव मी गॉड, गिव मी द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, मुझे आत्मा के 9 वरदान दे, मुझे आत्मा के। रोज सुबह 4 बजे उठ के मैं उसकी उपस्थिति में बोलता था। I remember the first time I heard the voice of the Lord so clearly. Every morning at 4 a.m. I would wake up and I would say, Lord, give me the 9 gifts of the Holy Spirit. और कोई बुरा नहीं है मांगना, And it's not bad to ask. मगर क्यों चाहिए वो बहुत जरूरी है। But why do you need those gifts is important. There are some ministers whom Holy Spirit uses, कुछ सेवक हैं जिनको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है, and there are some ministers who use the Holy Spirit, और कुछ सेवक हैं जो पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं, and both are very different. और दोनों बहुत अलग हैं. So मैं बोला था, प्रभु मुझे 9 वरदान चाहिए, 9 वरदान दे। और मेरे कमरे में प्रभु यीशु मसीह आए। मैंने उनको देखा नहीं, मगर मुझे पता था वो कमरे में एंटर करे, और उन्होंने मुझसे कहा, तू जो दिन रात मुझसे 9 वरदान मांगता है, क्या मैं उन वरदानों से उत्तम नहीं? And I felt the Lord Jesus walk into my room and he said, you who ask me for 9 gifts every day, am I not better than those 9 gifts? और फिर वो मुझे उन सब, वो कहने लगा, क्यों वो मेरी आवाज को सुनेंगे और क्यों वो मेरे हृदय को जानेंगे? क्योंकि उन्होंने मेरे प्रेम को तुच्छ जाना है, क्योंकि सामर्थ प्रेम बिना पतन का कारण है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे आज तक याद है, प्रभु ने मुझे कहा, सामर्थ प्रेम के बिना पतन का कारण है। The Lord spoke to me exact words. He said, power without love is the reason for fall. शैतान भी पावर चाहता है, Devil also wanted power. मगर उस पावर को जो पवित्र रखता है वो परमेश्वर के लिए प्रेम है। The thing that keeps that power pure for God is the love for God. Amen. हमारा असली धन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। Our true wealth is the Lord Jesus himself. जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे, केवल सामर्थ मांगने के लिए नहीं, मगर पिता को जानने के लिए, वो अभिषेक आपके अंदर बढ़ता जाएगा और प्रभु अपने आप को और प्रकट करेगा आपको। As you fellowship with him, not to ask for power but to fellowship, that anointing will keep on growing within you and the Lord will manifest himself to you more and more. Hallelujah. Thank you for this thundering silence. इस घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Amen. So ऊपर लाइट तो बढ़ेगी, The light upon you will मगर increase. अंदर की लाइट बढ़ती जाए आखिरी सांस तक। But let the light within increase till our last breath. Walk in clean conscience before God. परमेश्वर के सामने एक साफ विवेक में जिए. यानी मैं आपको, अगर कभी गलती हो, If you ever make a mistake, quickly go into his presence and come under the blood. जल्दी से उसकी उपस्थिति में जाएं और लहू के नीचे आ जाएं. Be quick to repent. जल्दी से माफी मांग ले, मन फिरा लें. Be quick to go to the Father and say sorry. जल्दी से पिता के सामने जाके माफी मांग लें. It will keep your conscience clean. ऐसा करने से आपका विवेक साफ आप रहेगा. जानते हैं ऐसे लोग रहे हैं जो हमारे चर्च में थे, जिन्होंने, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत यहाँ पे चोरियां करी, गलत गलत काम करे, छोड़ के चले गए, और प्रभु ने मुझे कहा उनको तू सॉरी बोल। मैंने कहा प्रभु, उन्होंने, they have done it, प्रभु ने कहा तू सॉरी बोल। There were people who stole from the church, left the church, did a lot of things, and the Lord told me, you apologize to them. I said, Lord, they've done this. Lord said, you apologize. आज कितने लोग हैं, अगर सॉरी उनको बोलना पड़े, उनकी जान, सॉरी, गर्दन कटा देंगे और सॉरी नहीं बोलेंगे। So many people are not willing to apologize. They are ready to die, but they will not apologize. मैंने कहा प्रभु, मैं अपने सारे अहम को साइड रखता हूँ। मैंने उस भाई को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे माफ करना। I said, Lord, I keep all my ego and pride aside. I messaged that brother and said, sorry. जो अभिषेक आपके अंदर है वो आपको मसीह की तरह बनाता है। The anointing within you will make you like Christ. Amen. और जस्ट इन केस आप मिस कर दो उसकी आवाज को सुनना,
तो प्रभु ने एक दूसरी पवित्र आत्मा दी है आपको. In case you miss hearing his voice, God has given you a second Holy Spirit. That is your wife. आपकी पत्नी. मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर अंदर से आवाज को मिस कर दो तो प्रभु आपकी वाइफ के द्वारा बोलता रहे जब तक आप सुनो ना. I pray if you miss the voice within, that the Lord will keep speaking through your wife until you hear. इसीलिए पत्नी को हेल्पर कहा गया है, जो पवित्र आत्मा को कहा गया है. That's why wives are called the helper and the Holy Spirit is called the helper. Amen. इसीलिए पतियों, So husbands, it's good to hear your wife. अपनी पत्नी को सुनना, उसकी सुनना अच्छा है. Godly wife. जो प्रभु का भय मानने वाली पत्नी हो. वरना एक आदम ने भी सुनी थी. Otherwise, Adam also heard his wife. Amen. अंदर से हमें सेंसिटिव रहना है. Stay sensitive from अगर घमंड लगे, कभी घमंड आ रहा है, go low before God. If you feel ego and pride rising up within, go low. परमेश्वर के सामने नीचे झुक जाओ. एक घमंडी को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता. A proud man will receive nothing from God. अगर फेवरलेस जीना है अपने जीवन में, स्ट्रगल में जीना है, तो घमंड में चलो. कभी भी अनुग्रह एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं गिरेगा. If you want to live a life without favor and if you want to struggle, then live in pride, not even one drop of grace will be found in your और life. अगर ऊंचा उड़ना है तो But if you नम्र हो जाओ. जो नम्र है खुदा उनको उठाता है. But if you want to soar high, be humble because the Lord lifts up the humble. Amen. याद है मैंने आपको बताया था कैटापुल्टिंग ग्रेस. कैटापुल्टिंग ग्रेस आपने देखा एक साल में क्या हो गया. Have you seen what has happened in one प्रभु ने year? क्या कहा था. कैटापुल्टिंग, प्रभु ने कहा था ऐसे उठा के ऐसे फेंकने वाला हूं मैं. The Lord had said, I will pick you up and I will throw you high. May you be catapulted towards your destiny in the name of Jesus. आप अपने डेस्टिनी की ओर, अपनी मंजिल की ओर उठाकर ऊंचा फेंके जाएं यीशु के नाम में. जहां दूसरों को पहुंचने में 10 साल 20 साल लगते हैं, आप महीनों में प्रवेश कर रहे हो यीशु के नाम में. Where it takes 10 years, 20 years for others to reach, you are reaching there within months in Jesus' name. वो सुपरनैचुरल स्पीड आपकी लाइफ में आ जा रही है यीशु के नाम में. That supernatural speed is coming into your life today in Jesus' name. हालेलुया. जहां आपका टैलेंट, जहां आपका नौकरी, जहां आपके कनेक्शन नहीं ले जा सकते, वहां खुदा का आत्मा आपको लेकर जा रहा है यीशु के नाम में. Where your talent, your job, your connections could not take you, the Holy Spirit is taking you there in Jesus' name. From today, the only direction you are going is up, up and up in Jesus' name. आज से आप एक ही दिशा में बढ़ रहे हो और वो है ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. You are stepping into next level in Jesus' name. आप अगले स्तर में प्रवेश कर रहे हो यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God. Amen. Okay. मैं जल्दी से आपको ये बता दूं और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे. आप सबके पास ऑयल है आपके हाथ में? All of you have oil. अगर नहीं है तो आप हाथ खड़ा कर दें. वॉलंटियर्स आपके पास If ले someone आएंगे. doesn't have- अगर नहीं है आपके पास तो हाथ खड़ा कर दें. If you don't have the oil, lift up your hand. The Volunteers, will can come you to you. quickly give them the anointing oil? Hallelujah. कितने लोग टर्न अराउंड को देखना शुरू कर दिया है जून में? How many मैं people बता रहा हूं जून बेस्ट महीना होने वाला है. I'm telling you, June is going to be the best month so far. June is the month of supernatural turnaround in Jesus' name. June supernatural turnaround का महीना है यीशु के नाम में. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. May you come under
that oil today in Jesus' name. आज आप उस तेल के अधीन हो जाएं यीशु के नाम में। किसी ने मुझे मैसेज किया था, क्या हम घर से भी तेल ला सकते हैं? हाँ, आप घर से भी तेल ला सकते हो। Somebody asked me, can we bring oil from home? Yes, you can. ये तेल हम यहाँ बनाते नहीं हैं। We don't manufacture this oil. साधारण तेल जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पे उतरता है तो असाधारण बन जाता है। Ordinary oil, when the anointing of the Holy Spirit comes into it, it becomes extraordinary. ओके, एक काम करिए, बैठ जाइए अभी सारे लोग। जिनके पास तेल नहीं है केवल वो खड़े रहिए, क्योंकि वॉलंटियर्स फिर इजीली आप तक तेल दे सकते हैं। Anyone who doesn't have the oil, let them stand. ओके, जिनके पास तेल नहीं है, वॉलंटियर्स आप जल्दी से उन्हें तेल दे दें। Hallelujah. And not only people are anointed according to Bible, और केवल लोग ही अभिषेक नहीं बाइबल के अनुसार, even things can be anointed. वस्तुओं में भी अभिषेक जाता है। Go and anoint your businesses in Jesus' name. जाओ और अपने बिजनेस को अनॉइंट करो यीशु के Anoint नाम your homes in Jesus' में। name. अपने घरों को अभिषेक करो यीशु के नाम में। And no enemy. When the anointing oil comes upon you, you become a touch me not entity for Satan. जब वो अभिषेक का तेल आपके ऊपर आता है, आप ऐसे बन जाते हैं जिसको शैतान छू भी नहीं सकता है। Hallelujah. Okay, jaldi se volunteers, if you can give the oil to people. Praise God. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. What a privilege that we are in Christ Jesus. क्या सौभाग्य है कि हम मसीह में हैं। Amen. तो जो कितनी गर्मी लग रही है अभी आपको एसी में, Imagine तो हमें if you- कितना धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमें एक बहुत ज्यादा गर्मी से बचा लिया है। if you're नहीं feeling समझे? so- जो नरक में जल रहे हैं ना, वहां बहुत ज्यादा गर्मी है। God has saved us from hell. Come on. Amen. Hallelujah. Amen. बाइबल कहती है वहां की आग कभी बुझती नहीं, Bible says the fire thereof never quenches. मगर आप वहां जाने वाले नहीं हो, But you are not going there क्योंकि आप मसीह में हो। because you are in Christ. तो कितना हमें धन्यवाद देना चाहिए। We should be so thankful. हालेलुया। Hallelujah. अब आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us all stand. मैं एक बात आपको ध्यान से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको साधारण समझोगे, इस मौके को, इस समय को, तो ये साधारण है। If you take this time, this moment lightly, then it will be light or ordinary. आपके साथ वही होगा जैसा आपका विश्वास है। You will have as you believe. आपने देखा यहाँ पे कितनी गवाहियां आती हैं, जैसे ही तेल लोगों के शरीर को छूता है, शैतान की सामर्थ नाश हो जाती है यीशु के नाम में। We receive so many testimonies. The moment this oil touches people, every power of the devil is destroyed. अगर आप यहाँ पर आए हो और आपका कोई रिश्तेदार भी बीमार है, अभी जब हम घोषणा करेंगे इस बात को समझो कि ये साधारण तेल आप असाधारण होकर लेके जा रहे हो इसको। If you've come here and one of your relatives is sick, then know that this ordinary oil, you're taking it back as extraordinary. आज कैंसर्स नाश होंगे यीशु के नाम में। Today cancers will be destroyed in Jesus' name. आज ट्यूमर्स घुल जाएंगे यीशु के नाम में। Tumors will dissolve in Jesus' name. आज टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाएंगी यीशु के नाम में। Crooked bones will be made straight in Jesus' name. आज अंधी आंखें देखेंगी यीशु के नाम में। Today blind eyes will see in आज Jesus' name. बहरे कान सुनेंगे यीशु के नाम में। Today deaf ears will hear in Jesus' name. फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैंने एक दर्शन देखा आज की सेवा के लिए। Then I'll tell you the vision that I saw for today's service. आखिरी में जब हम प्रार्थना करेंगे, बहुत पावरफुल। It's very powerful. ओके, आप जो तेल आपके हाथ में, लिफ्ट इट अप, और हम साथ में घोषणा करेंगे। We will declare together. ओके, हम साथ मिलकर घोषणा करेंगे और इस बात को समझना कि जैसे हम घोषणा कर रहे हैं आज, पवित्र आत्मा का पुनरुत्थान का सामर्थ इस तेल में समा रहा है। The power of the Holy Spirit will flow into this oil as we make these declarations today.
This oil is no longer ordinary. It is no longer ordinary. I set it apart by faith in the name of Jesus. It is now consecrated, anointed, and wholly empowered by the Spirit of God. By the Spirit of God. As it touches, it transforms. It transforms. As it is applied, it heals. As it is released, it breaks every yoke in Jesus' name. It breaks every yoke in Jesus' name. यह तेल अब सामान्य नहीं है. मैं इसे यीशु के नाम में विश्वास से अलग करता हूं. यह अब अभिषिक्त, पवित्र और परमेश्वर की आत्मा से सशक्त है. जहां ये छुएगा वहां रूपांतरण होगा. जहां लगाया जाएगा वहां चंगाई आएगी. और जहां बहाया जाएगा वहां हर एक जुआ यीशु के नाम में टूट जाएगा. This oil is a point of contact for healing power. As it touches the sick, the same anointing flows through them. I declare, sickness must leave, pain must go, and full restoration must manifest in Jesus' name. यह तेल चंगाई की शक्ति के लिए एक संपर्क स्थान है. जैसे ही यह रोगी को छुएगा वैसे ही अभिषेक जो यीशु में था उसमें प्रवाहित होगा. मैं घोषणा करता हूं, बीमारी जाएगी, दर्द हटेगा और संपूर्ण बहाली प्रकट होगी. यीशु के नाम में. By this anointing oil, I proclaim liberty to the captives. Every demonic oppression breaks at the touch of this oil. Chains are loosed, minds are restored, and peace returns. The yoke is destroyed because of the anointing. इस अभिषेक तेल के द्वारा मैं बंधनों में पड़े लोगों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं. हर दुष्ट आत्मिक जुए को यह तेल तोड़ देता है. जंजीरें खुलती हैं, मन बहाल होते हैं और शांति लौट आती है. यह अभिषेक हर बंधन को तोड़ता है यीशु के नाम में. This oil marks divine protection. As it is applied, the Lord surrounds us like a shield. No plague, pestilence, or evil can cross the line of the anointing. I plead the blood of Jesus over every person, home, and possession anointed with this oil. यह तेल परमेश्वर की सुरक्षा की मोहर है. जैसे ही ये लगाया जाता है प्रभु एक ढाल बनकर मेरी रक्षा करते हैं. कोई भी विपत्ति, महामारी या बुराई अभिषेक की रेखा को पार नहीं कर सकती. मैं यीशु के लहू को हर घर, व्यक्ति और संपत्ति पर लागू करता हूं जो इस तेल से अभिषिक्त है. Hallelujah. Now open the cap, lift it up, and we are going to pray in the Spirit for some time. इसको खोल लें
हम कुछ समय साथ में आत्मा में प्रार्थना करें। Come on, आत्मा में थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे. Mazakati brahade, Yamala aze broga dele brege, Ambage gosi managale heriaba, Zobiga bahari alabaze kanama, Ragabade ni alabase ko mama magaya baga, Le korigada namaze karaba. Eliba makabara kakaka se tokonomo ezibalaha meki goli kamaragade zobra baba bazendelege regila baba baba bare. Oh, hallelujah. This is your hour of encounter with power. ये आपका क्षण है सामर्थ्य के साथ साक्षात्कार करने का। Robraga dele brege dene me zakatana. Hallelujah. Hallelujah. Now, take some oil on your hand थोड़ा तेल अपने हाथ पर ले, and anoint yourself. अपने आप को अभिषेक करें, Anoint yourself. अपने आप को अभिषेक करें। Hallelujah. You are marked. आप पर छाप लगाई है। I declare that you are a touch me not entity for Satan. मैं घोषणा करता हूँ आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको शैतान छू भी नहीं सकता है। Every affliction in your household is destroyed now in Jesus' name. आपके घराने के विरुद्ध हर एक सताव नाश किया जाता है यीशु के नाम में। Every organ in your body that is malfunctioning is restored now in Jesus' name. आपके शरीर का हर एक अंग जो ठीक से काम नहीं कर रहा था वो वापस चंगा किया जाता है यीशु के नाम में। Hallelujah. Everything afflicting you is afflicted from now on in Jesus' हर name. एक चीज जो आपको सताती थी आज तक अब वो सताई जाती है यीशु के नाम में। Every tormenting spirit is now tormented by the power and the fire of the Holy Ghost. हर एक सताने वाली आत्मा आज पवित्र आत्मा की आग में सताई जाती है यीशु के नाम में। Hallelujah. Now hear this. As I was praying for this meeting last night, जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस सभा के बारे में पिछली रात, I saw two things. मैंने दो चीजें देखी। I saw a great anointing fall on people. एक महान अभिषेक लोगों पर उतरते हुए देखा And the intensity of the power was so great और उस सामर्थ्य वो बहुत ही महान that सामर्थ्य थी। many people were thrown off their chairs. बहुत से लोग अपनी कुर्सी से उड़ते हुए गए। आज Pentecost Sunday है. Today is Pentecost Sunday. And in the timeline of God is not linear, it is spiral, it's circular. और परमेश्वर का जो समय है, परमेश्वर की जो टाइमलाइन है वो सीधी सीधी रेखा नहीं है लेकिन वो घूमने वाली रेखा की तरह है। That means you can experience Pentecost today in Jesus' name. इसका मतलब आप पेंटिकोस्ट का अनुभव आज पा सकते हैं यीशु के और मैं नाम आपको में। बता रहा हूँ ये अब हर किसी के लिए नहीं है, ये नाम चलेगा। केवल भूखे लोगों के ऊपर परमेश्वर एक महान अभिषेक को डालने जा रहा है। This is not for everyone. God is going to pour out a mighty anointing upon those who are hungry. And then I saw in the pastors section, I saw a great anointing come upon pastors. और मैंने पास्टर्स के सेक्शन को देखा, मैंने एक महान अभिषेक को पास्टर्स पर आते हुए देखा। An anointing that brings church growth. वो अभिषेक जो कलीसिया की बढ़ोतरी लाता है। An anointing that takes over territories. वो अभिषेक जो क्षेत्रों पर कब्जा करता है। Last to last night God showed me. पिछली से पिछली रात परमेश्वर ने दिखाया। Are you ready? आप तैयार हैं? If you are yielded vessel, अगर आप समर्पित बर्तन हो, if you are sensitive to the moving of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के चलन के लिए संवेदनशील अगर this आप हो, time is for you. तो ये समय आप ही के लिए है। Make sure that you are not holding kids at this moment. इस समय आप बच्चों को पकड़े हुए ना हो, ध्यान देना। And if you're holding kids, you should sit down. अगर बच्चों को पकड़ा हुआ है तो आप नीचे बैठ जाएं। Because the gushing power of the Holy Spirit is going to come. क्योंकि पवित्र आत्मा की वो उमड़ती हुई सामर्थ्य आएगी। In the overflow section, in the chapel area, wherever you are, ओवरफ्लो में, चैपल में, जहां पर भी आप लोग हैं, a mighty anointing is going to come upon His people. महान अभिषेक उतर आएगा।
Lift up your hands. अपने हाथों को उठाएं। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम as you में, have shown me, Lord, as you have shown me, जैसा आपने मुझे दिखाया प्रभु, I release the fire. मैं अग्नि को खोल देता हूँ यीशु के Fire! नाम में। Fire! अग्नि Receive it now. ले लो इस समय। Fire comes upon you. आग आती है आपके Power ऊपर, comes upon you. सामर्थ्य आती है आपके ऊपर। Masakatala bragadala bragadala bra. Ragadala bragadala bragadala ba 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 ba. Fire. अग्नि, Holy Ghost fire. पवित्र आत्मा की आग, Holy Ghost fire. पवित्र आत्मा की आग। भर जाओ इस समय। Be filled एक महान अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। with a mighty anointing that's coming एक upon महान अभिषेक आपके ऊपर आ रहा you. A mighty anointing is coming है। upon Take it you. now. ले लो, Take it now. ले लो, Be filled. भर जाओ, Be filled. भर जाओ। Fire. अग्नि, Fire. अग्नि, Fire. अग्नि, Fire. अग्नि। Mazabrahadala bragadala bragadala ba. Oh, Zemana handanama. Bragadala bragadala bragada. You are turning into a different person. आप एक अलग व्यक्ति में बदल रहे हो इस समय। You are turning into another person. आप एक अलग व्यक्ति में बदल रहे हो अभी। The anointing is transforming you into another person. अभिषेक आपको एक अलग व्यक्ति के रूप में बदल रहा है अभी। The anointing is turning you into another person. वो अभिषेक आपको एक अलग व्यक्ति बना रहा है। Fire! अग्नि, From the crown of your head सर से लेकर to the soles of your feet. पांव के तलुओं तक The power of God is rushing in your body. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके शरीर में दौड़ रही है। Take it. ले लो, Take it. ले लो, Take it. ले लो। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Oh, ha 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 ha, sabraga. La kabaragadana madagadala. La bragadala bragadala. Every devil that molested you is running in terror. हर एक वो दुष्ट जिसने आपको सताया था वो भयभीत होके भाग रहा है। Every devil that molested you is running in terror. हर एक वो शैतान जिसने आपको सताया था डर के मारे भाग रहा है। Every mocking Goliath is brought down by the sword of the Lord. हर एक ठट्ठा उड़ाने वाला गोलायत परमेश्वर की आत्मा की तलवार के द्वारा मार गिराया जा रहा है आज। Every mocking Goliath is brought down in Jesus' name. हर एक ठट्ठा करने वाला गोलियत आज मार गिराया जा रहा है In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Come on, step into your new level in Jesus' name. अपने नए स्तर में प्रवेश कर लो यीशु के नाम में इस समय। Step into your new level in Jesus' name. अपने नए स्तर में प्रवेश कर लो अभी। Hallelujah. Ogaba ragaba. Ragaba ragadara badagadala. Holy Ghost. Receive the fire of the Holy Ghost.
a deliverer in Jesus' ये name. अभिषेक आपको छुटकारा देने वाला बना रहा है यीशु के नाम में। This anointing is transforming you into a mighty deliverer in Jesus' ये name. अभिषेक आपको एक महान छुटकारा देने वाला बना रहा है यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. When David was anointed, जब दाऊद का अभिषेक किया गया, the oil came upon him, वो तेल उसके ऊपर उंडेला गया, but there was no other proof. पर और कोई सबूत नहीं था। But in some days, लेकिन कुछ दिनों में he brought Goliath down. उसने दाऊद को ढेर कर दिया। Today, as this oil has come upon you, आज जब ये तेल आपके ऊपर आया है, so many people will not realize, बहुत से लोगों को अभी पता नहीं लगेगा, but every mocking Goliath is coming down in Jesus' name. लेकिन हर एक वो ठट्ठा उड़ाने वाला गोलायत मार गिरा जा रहा है यीशु के नाम में। Every mocking Goliath comes down in Jesus' name. ओ हर एक ठट्ठा उड़ाने वाला गोलायत मार गिरा जा रहा है यीशु के नाम में। This anointing will preserve you. ये अभिषेक आपको बचा के रखेगा। This anointing will elevate you. ये अभिषेक आपको ऊंचा उठाएगा। This anointing will teach you how to fight. ये अभिषेक आपको लड़ना सिखाएगा। But remember, और याद रखना, always remember till your last breath. अपनी आखिरी सांस तक याद रखना, The anointing flows, the oil flows upon the house of God. परमेश्वर का अभिषेक, उसका वो तेल उसके घर के ऊपर उंडेला जाता है, Not individually. अकेले किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं। As you are connected, yes, God can anoint you individually because you are connected to the body. हाँ, परमेश्वर आपका अभिषेक कर सकता है अकेले में, क्योंकि आप उसकी देह से जुड़े हुए हो। You try this for 6 months. 6 महीने करके देख लो। Honor his house. उसके घर का आदर करो, Make his house your priority. उसके घर को अपनी प्राथमिकता बना लो, Look what happens in your life. और देखो क्या होता है आपकी जिंदगी का। Such exaltation will come where you can never reach in your own strength. ऐसी ऊंचाई आएगी आपकी जिंदगी में जहां अपने बलबूते कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। And today, और आज every molesting demon हर वो शोषण करने वाली दुष्ट आत्मा that has been molesting your destiny जो आपकी मंजिल का शोषण करते आए, is bound and casted out forever in Jesus' name. वो हमेशा के लिए बंदी बना करके उखाड़ फेंकी जा रही हैं यीशु के नाम में। The defeats you saw in May is the last defeat you will ever see in Jesus' name. जो हार आपने मई के महीने में सही थी, वो आखिरी हार है जिसका आप कभी भी सामना करोगे आगे। June, oh mighty June, I declare June is your month for supernatural turnaround in Jesus' name. जून ये महान महीना मैं घोषणा करता हूँ, जून का महीना आपके सुपरनैचुरल टर्न अराउंड का महीना होगा यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Celebration will never cease in your house. सेलिब्रेशन कभी आपके घर से समाप्त नहीं होगा। Testimonies will never cease in your house. गवाहियां कभी आपके घर से समाप्त नहीं होंगी। Good news will never cease from your house. अच्छी खबरें कभी आपके घर से खत्म नहीं होंगी। If you believe it, shout aloud, अगर amen. मानते हो आमेन कहो। Come on, give some praise to यीशु की Jesus. स्तुति करो। हाथों को उठाओ। जैसे आप स्तुति कर रहे हो, वैसे ही सारी वो लिमिटेशन येरियो की दीवारें गिराई जाती हैं। As you praise, every limitation, every wall of Jericho is thrown down. Hallelujah. Hallelujah.
Say, I am marked by God. कहे परमेश्वर ने मुझे चिन्हित किया है. I am unstoppable because I am anointed with the Holy Spirit. कहे मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर है. What your earlier generations have said is not possible. जो आपकी पिछली पीढ़ियों ने कहा था कि ये तो संभव नहीं है, God is making it possible through you in Jesus' name. परमेश्वर आपके द्वारा उसको संभव बना रहा है यीशु के नाम में. You will be the first one in your family to go where your household or your family members have never gone before. आप अपने खानदान में वो पहले व्यक्ति होंगे जहां अभी तक कोई नहीं जा पाया, आप जाएंगे यीशु के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. Expect. उम्मीद करें, Expect good news. अच्छी खबरों की उम्मीद करें. आप जानते हैं अगर रात को मुझे 2:30 बजे 12:30 बजे फोन आता है, If I get a call in the middle of the night, अब तो बहुत कम आता है now it's very less. क्योंकि मैं नंबर ही नहीं देता किसी I का, don't give my number. मगर पहले फोन आते थे इतने सारे रात को. But earlier I should get calls in the मेरा middle of the कुत्ता night. बीमार है, My dog is sick. मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया, My girlfriend broke up with me. सो मुझे लगा कुछ तो करना पड़ेगा. I said I have to do something. सो मैंने कहा वचन कहता है यू हैव टू ड्वेल इन द सीक्रेट प्लेस. मैंने कहा नंबर भी सीक्रेट कर दो. The word says that आपको गुप्त स्थान में रहना है तो नंबर. पर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अभी रात को मुझे फोन आता है, मैं पता है मेरे अंदर से क्या आता है, गुड न्यूज. If I get a हमेशा call, बैड न्यूज क्यों एक्सपेक्ट करें हम? गुड न्यूज. if I get a call in the middle of the night, I think it's a good news. एक अच्छी खबर है. हमें दरवाजे पे नॉक होती है, बोलो गुड न्यूज. A knock at the door, say good news. एक्सपेक्ट गुड न्यूज. अच्छी खबरों की उम्मीद करो. हालेलुया. Hallelujah. ओ हालेलुया. प्रेज गॉड. तैयार हो जाओ, Be ready. बहुत गुड न्यूज आने वाली है यीशु के नाम में. Many good news are coming to you in Jesus' name. हालेलुया. ओके, नाउ वैसे तो आप ऑलरेडी चंगे हो चुके हो. द मोमेंट जैसे ही तेल ने आपको छुआ, वो बीमारी छोड़ के जा चुकी है. The moment the oil touched you, the sickness left you. But I want to stand with those whose faith has not reached there. पर मैं उनके साथ खड़ा हूं जिनका विश्वास अभी वहां नहीं है. तो थोड़ा सा तेल लो और अपने उस जगह पे लगाओ जहां पे आपको बीमारी है. Take a bit of the anointing oil and put it in the place where you have a sickness. ओके, अगर आपके साथ कोई बहरा है तो कान में डालो, मतलब बॉटल मत डाल देना पूरी, उंगली में थोड़ा सा तेल लगा के. If there's someone with you who cannot hear, touch a little bit of oil on your finger and put it in the ear. ओके, हालेलुया. अभी आपको एक काम करना है. Now you have to do something. मेरे पीछे बोलो, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है. Say, "Man, Jesus can do everything." सवाल ये है जो सवाल वो लोगों से पूछता रहा, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? The question Jesus asked people was, "Do you believe that I can do this for you?" तो लोग क्या बोलते हैं, ओ प्रभु, पर डॉक्टर ये बोल रहे हैं, So people say, "Oh, the doctor 30 is साल saying से this." ये है. मेडिकल साइंस में कोई Medical science. वो ये नहीं पूछ रहा है यीशु. He's not asking that. वो आपसे एक सवाल पूछ रहा है. He's asking you one question. आज वो आपसे पर्सनली, आप पड़ोस को भूल जाओ कौन है, आपसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये तुरंत कर सकता हूं? Today he's asking you one question personally to you. Do you believe that I can do this for you now? Today may you encounter the God who does instant miracles. आज आपका सामना उस परमेश्वर से हो जो तुरंत चमत्कार करता है. कब करता है? Some people say, हाँ मुझे पता है, थोड़ा टाइम, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. It will be done according to your faith. आपके विश्वास के अनुसार होगा. आप मानते हैं टाइम लगेगा तो वैसा होगा. May the grace of instant miracles locate you today in Jesus' name. तुरंत चमत्कार का अनुग्रह आपको आज ढूंढ निकाले यीशु के नाम में. I told you earlier,
Every day is God's day. हर दिन परमेश्वर का दिन है. The day you believe is your day. जिस दिन आपने मान लिया वो आपका दिन है. Today can be your day. आज आपका दिन हो सकता है. You can come testify. आप आके गवाही दे सकते हैं आज. Today can be your day. आज आप ही का दिन हो सकता I pray may today be your day in Jesus' है. name. मैं प्रार्थना करता हूँ आज आप ही का दिन हो यीशु के Come नाम on, में. for a moment, come on, open your mouth and say, Jesus, this is my day. अपना मुंह खोले कहें यीशु आज मेरा दिन है. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Let us all stand Come in on, our come on, place. come on, honor His presence. उसकी उपस्थिति का आदर करते हुए. बोलो प्रभु आज मेरा दिन है. Say Lord today is my day. शुगर से बाहर आने का, To come out ब्लड of प्रेशर sugar. से बाहर आने का, To come out of- कैंसर से बाहर आने का, Come out of ट्यूबरक्लोसिस से बाहर cancers, आने का, tuberculosis. हाँ, थायराइड से बाहर आने का. Come out of आज thyroid. मेरा दिन है. Today is my day. Come on, come on, come on. मुंह खोलो और बोलो उसे. Open your mouth and tell him. बोलो उसे, यीशु मैं तेरे घर में आया हूं, आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जा रहा. Tell him I have come to your house. I'm not going back empty-handed today. यीशु का नाम ऊंचा है. यीशु का नाम ऊंचा है सबसे. ओ मेरा यीशु सुंदर है. हाँ वो सबसे सुंदर है. मेरा यीशु सुंदर है सबसे. उसका नाम ऊंचा है. यीशु का नाम ऊंचा है. यीशु का नाम ऊंचा है सबसे. हालेलुया. अब वो तेल लेके आप उस जगह में लगाओ जहां पे आपको बीमारी है इस समय, और मैं साथ में प्रार्थना करूंगा. Take the oil and put it in the place and I will pray. ये तेल वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है विश्वास का. This oil will be the point of contact for your faith. आज आपके इंस्टेंट हीलिंग का समय है. Today is the time for your instant healing. अपनी आंखें बंद करो और रिसीव करो. Close your eyes and receive. Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority over every foul spirits of infirmity. मैं अधिकार लेता हूँ हर एक बीमारी की गंदी आत्माओं के ऊपर. You foul devils, तुम दुष्ट आत्माओं, I command you to stop your maneuvers and desist your operation right now. मैं आदेश देता हूँ अपने कामों को बंद करो इसी समय. Go! निकल जाओ. Leave these people. छोड़ दो इन लोगों को. In the name of Jesus, यीशु के नाम में I command every sickness to be healed. मैं आदेश देता हूँ हर एक बीमारी चंगी हो जाए. Cancers be healed. कैंसर चंगे हो जाएं. Tumors be dissolved. ट्यूमर्स घुल जाएं. Twisted bones be straightened. टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाएं. Ligaments be healed. लिगामेंट्स चंगे हो. Nerve problems be healed. नसों की बीमारियां चंगी हो. Backs be healed. कमर चंगी हो. Cervical pain go. सर्वाइकल के दर्द जाए. Every kind of headache go. हर तरह का सर दर्द जाए. Every kind of stomach ache go. हर तरह का पेट दर्द जाए. Kidneys be healed. किडनी चंगी हो जाए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Every sickness and disease हर रोग और बीमारी be destroyed by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा नाश हो जाए.
by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा You are getting instantly healed now. आप तुरंत चंगे हो रहे हो अभी। Receive your healing now. अपनी चंगाई को ले लो अभी। Every pain is leaving you. हर एक दर्द आपको छोड़ रहा है, Every weakness is leaving you. हर कमजोरी आपको छोड़ रही है अभी। Somebody, your face is paralyzed, half paralyzed, so it's a little twisted. The Lord is healing you now. कोई है जिसका चेहरा लकवा ग्रसित है, हल्का मुड़ा हुआ है, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है अभी। You had paralysis and it got better, but your face is still little twisted. आपको लकवे की बीमारी हुई थी, आपका चेहरा अभी भी उसके कारण थोड़ा मुड़ा हुआ है। And the Lord is healing you now. और परमेश्वर आपको अभी चंगा कर रहे हैं। The grace of instant healing is coming upon you now. तुरंत चंगाई का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है इस समय। That bone is healed now. वो हड्डी अभी चंगी हो चुकी है। That tumor is dissolved now. वो ट्यूमर घुल चुका है अभी। That pain is gone now. वो दर्द जा चुका है अभी। That deaf ear is open now. वो बहरा कान खुल चुका है अभी। Body be healed शरीर चंगे हो, from the crown of your head सर से लेकर to the soles of your feet. पांव के तलुओं तक। Be healed.